Good morning, 11th. I again welcome you the online classes program. First of all, I want to congratulate those students who show the work daily. There are several number of students in math section, but few in bio. So I motivate you. Complete your work regularly. Let's continue to the syllabus. There are several definitions, small definitions like mass and weight. Mass and weight. So first, I define the mass. Mass is the amount of substance present in it. For example, the mass of this pen is the amount of substance present in it. It means इसका मास यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सब्सटेंस की मैटर इसका वेट है, यानी इसका मास है. तो हम लिखने के लिए अगर हम जाएंगे तो हम कहेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. एंड वेट इज अ फोर्स exerted by the gravity on that object. यानी इस पेन पर ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रही है नीचे खींचने के लिए, तो वो फोर्स मैं अपने हाथ पे फील कर रहा हूँ, तो वो इसका क्या है, वेट. जितना अमाउंट दिखाई दे रहा है ये क्या है, मास. तो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस. मास नेवर चेंज बट वेट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑन हाइट और डेप्थ. द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम. There are several units of volume as you know in maths. Here 1 liter equal to 1000 ml and 1 ml equal to 1 centimeter cube. And you can say a cube of 1 centimeter as length, या side length equal to 1 centimeter equal to 1 ml. So you can write 1 liter equal to 1000 centimeter cube. Split it in 3, 10 to 10 into 10 centimeter, centimeter, centimeter. 10 centimeter 1 decimeter, 1 decimeter, 1 decimeter. 1 liter becomes 1 decimeter cube. So you can derive some other relation between the terms of volume. The next one is density. Density of any substance is the amount of substance या mass per unit volume. यानी अगर हम मास और वॉल्यूम का रेशो ले लें तो हमें क्या मिल जाती है, डेंसिटी. तो डेंसिटी की ट्रिक भी होती है. MBD की एब्रीवेशन होता है MVD, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. यहाँ से हम डेंसिटी निकालें, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इन केमिस्ट्री जब भी हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी में मास ऑफ द जो आएगा वो भी सॉल्यूशन का आएगा और वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का. तो डेंसिटी हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूशन की, जो इंडिकेट करती है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का रेशो ही डेंसिटी बन जाता है. नेक्स्ट स्मॉल टर्म इज टेम्परेचर. There are 3 common scales. First one degree Celsius, second one degree Fahrenheit, and third one Kelvin. In chemistry, you always write or use the temperature in Kelvin only. So there are several relations to convert the degree Celsius or Fahrenheit into Kelvin. So Kelvin equal to degree Celsius plus 273. In class 12th, you have to mention here 273.15 exactly, because there are several colligative properties in which we use the least term 1.15. But here you can say Kelvin equal to degree Celsius plus 273 only. The second one, degree Fahrenheit equal to 9/5 degree Celsius plus 32. It is another scale.
in Fahrenheit. If I am talking about the human body temperature, it is in degree Celsius, 37 degree Celsius, and in Fahrenheit it is 98.6 Fahrenheit. यानी अगर हमें फीवर होता है तो टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे थर्मामीटर्स फ़ारेनहाइट में वर्क करते हैं। और अगर मैं बात करूँ वाटर के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, तो वाटर का अगर आइस है वो या फ्रीजिंग पॉइंट कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में ये 273 और 373 हो जाता है, ये केल्विन है। और अगर इसे फ़ारेनहाइट में लेके जाऊँ तो ये हो जाता है 32। यहाँ पे देखो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये बन जाता है 212। तो ये इंटर कन्वर्टेबल स्केल्स थे, याद रखना। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नेक्स्ट स्मॉल टर्म इज साइंटिफिक नोटेशन। Actually, in chemistry, we always deals with the very least particles or very least matter या substances present in a large number. And if you check, you identify the particles dimension wise or mass wise, so they produce a very least value, but they are present in very large number. So chemistry always deals with the very small, जैसे mass of an atom equal to 0.0000000000000012 gram. So it is very least value. But if I want to count the number of iron atoms present in the nib or top of this pen, so they are maybe 200000010 की पावर 24 23 numbers. So chemistry deals with a very small terms as well as very large numbers. So for conveniently, these terms can be written in a into 10 की power b. So this way of representation is called scientific notation. Now we can define it. It is a scientific notation is a way of writing numbers which are too small or too large in the form of a into 10 की power b. There are some calculations for addition of this, subtraction of this, multiplication and division. I used some examples for 5 into 10 की power 4 minus 2 into 10 की power 3. अगर आप इसे माइनस करना चाहें तो हमेशा जब भी एडिशन होगा या 2 into 10 की पावर 8 प्लस 4 into 10 की पावर 9, तो b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर b सेम कर सकते हैं हम कैसे, 5 into 10 की पावर 4, तो 4 को मैं 3 कर लेता हूँ और एक 0 यहाँ लगा देता हूँ। यानी मैंने क्या किया, बायो वाले ख़ास तौर से देखो यहाँ पे मैंने इसे किया है 5 into 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 को मैंने अब लिख दिया है 10 की पावर 3 into 10 और ये 10 यहाँ भेज दिया, तो ये हो गया 50 into 10 की पावर 3। माइनस करना है 2 into 10 की पावर 3, ये बाहर आ गया, ये आ गया 48 into 10 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे देखो ये 8 9, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 2 into 10 की पावर 8। अब इसे 9 करूँ तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है 2 into 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 10।
अब ये वाला इसे दे देगा पावर, तो 2 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10। ये 9 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म में पावर 9 है। अब ये 10 से 2 को कट कर दो, 0.2 इंटू 10 की पावर 9। यानी अगर हम पावर को इंक्रीज़ करते हैं तो डेसिमल लेफ़्ट साइड चलता है ऐसे, और पावर डिक्रीज़ करते हैं तो डेसिमल राइट साइड चलता है। बस अब इसमें से हम कर सकते हैं। अब हम जाते हैं किस पर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वहाँ पे पावर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, पावर वहाँ पर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3, ये 20 इंटू 10 की पावर 5। इस तरह से ये हो जाता है। द नेक्स्ट टर्म इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली ईच एंड एवरी मेजरमेंट, चाहे वो फिज़िकली हो या एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हो, ऑलवेज हैव सम अनसर्टेनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 kg पोटैटो लाने हैं, तो अगर आप उसे सिंपल 2 पेन बैलेंस से तुलवाते हैं तो उसने आपको दे दिया ये 1 किलो पोटैटो है। लेकिन अगर आप इसे डिजिटल स्केल पर रखोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू 1.10 ग्राम आ जाए, यानी किलोग्राम आ जाए। अगर आप उससे भी ज़्यादा लीस्ट वाले पे ले जाओगे तो हो सकता है ये 1.154 किलोग्राम आ जाए। अगर और लीस्ट काउंट करेंगे, यानी हम अपने पेन की यानी तराजू की बैलेंस की एक्यूरेसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक डिजिट हमें एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ हमें ये केवल 1 kg लग रहे थे, लेकिन यहाँ ये 1.1 यानी उस किलोग्राम में भी वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा दिखाई दिए। लेकिन अगर हमने आगे देखा तो 100 में भी आगे 54 ग्राम एक्स्ट्रा दिखाई दिए, 54 में भी आगे यहाँ आ सकता है। कैसे में कोई भी मेज़रमेंट हो उसके साथ क्या होती है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी। यानी यू कैन राइट ईच एंड एवरी मेजरमेंट ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद इट। दीज टर्म्स आर रेफर्ड इन द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अनसर्टेनिटी को रेफ़र करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, वो नंबर्स यूज़ होते हैं, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। You can write the definition of significant figure. Significant figures are the meaningful digits which are known as certainty. So there are several rules for calculating the significant figures in a given number. यानी आपको कोई नंबर दिया हो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये चीज़ आपको कुछ रूल्स से मिलती है। उन रूल्स की बात कर लेते हैं। उन रूल्स के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं यहाँ पर रूल्स पर। तो पहला रूल, अगर हम बात करें किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, तो ये है ऑल नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सब सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा 2742, ये एक वैल्यू है। या मैं कहूँ कि मेरा वेट कितना है 69 kg, तो ये एक वैल्यू है। आपकी हाइट कितनी है 125 सेंटीमीटर, तो ये एक नंबर है। तो अगर ऐसा कोई नंबर है, कोई भी डिजिट दिया है, उसके अंदर जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन दिस नंबर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, इन दिस 2 और इन दिस 1 2 3। यानी किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट में जितने भी नंबर हैं, किसी भी एक वैल्यू में जितने नॉन डिजिट नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब सेकेंड रूल कहता है ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो, ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट।
जैसे मैंने कहा 105 4002 60009, तो ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, ये भी नॉन ज़ीरो के बीच में, ये भी नॉन ज़ीरो के बीच में है। तो ऐसे ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, हेयर 4, हेयर 1 2 3 4 5 6, तो यानी मैंने यहाँ पे ज़ीरो भी काउंट किए हैं। तो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब ज़ीरो preceding to non-zero and written after the decimal are not significant। यानी हमने किसकी बात की? वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो से पहले आ रहा है, preceding the first नॉन ज़ीरो। जैसे मैंने कहा 5 0 और ये पॉइंट, या 3 0 0 पॉइंट, या 2 4 0 0 0 पॉइंट। तो ये सारे ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो से पहले हैं, तो ऐसे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। दे आर इंडिकेटिंग ओनली द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी ये केवल डेसिमल की पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ये बता रहा है कि यहाँ पर डेसिमल सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पे डेसिमल जा रहा है, 1 2 3 प्लेस तक डेसिमल है। तो ऐसे में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल ये होगा 1, इसमें ये दोनों होंगे 2, और इसमें केवल ये होगा 1। ये काउंट नहीं होंगे। तो याद रखना, ज़ीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। अब वो कह रहा है ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द नॉन ज़ीरो, ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नॉन ज़ीरो are significant if they are placed after the decimal। देखो, यानी ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के बाद आए, तो नॉन ज़ीरो सपोज ये 1 5 4, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं, इनके बाद ज़ीरो लगाना है। तो 0 0 0 0 0 0, ये सारे ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बाद हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट तब होंगे, कब होंगे? जब ये डेसिमल के राइट साइड में आएंगे। अगर ये डेसिमल के राइट साइड में नहीं आ रहे तो ये नॉन ज़ीरो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो अब देखो यहाँ सम में यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो ये क्या है? केवल ये 1, यानी ये डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं है तीनों ये। लेकिन यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया, तो अब ये वाला ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बाद है और डेसिमल के भी राइट साइड है, तो अब ये सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट है? 1 और 2, तो यहाँ दोनों। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 5.000, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4। अगर मैं ऊपर वाले को लिख दूँ कितना? 10.000, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ 0.00500, तो यहाँ दो रूल एक साथ आ गए। ये वाले दोनों ज़ीरो तो डेसिमल की पोजीशन बता रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बाद में है और डेसिमल के भी राइट साइड में है, तो ये काउंट होंगे। तो देयर आर 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये सब रूल्स थे। एक रूल को हम यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि वो ओवर रूल्ड हो जाता है। बता देता हूँ, एग्जैक्ट नंबर ऑलवेज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी उसने कहा कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर अगर मैं लिख दूँ तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी ये हमारे फर्स्ट रूल का वायलेशन है। अब वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 4.00000 लिख सकते हैं, 2.000। अब ये ज़ीरोज़ डेसिमल के राइट साइड है, तो ऐसे में सिग्निफिकेंट फिगर तो होंगे। तो ऐसे में कितने ज़ीरो लगा सकते हैं हम किसी भी नंबर के बाद? इनफाइनाइट। तो इसलिए ये रूल हमारे पहले रूल को ओवर रूल कर देता है, तो इसलिए इसे हम डिस्कस नहीं करते। डन। इसके कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी बेसिक टॉपिक में आपने सीखा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाउंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन फॉर्म कंपाउंड्स। तो ऐसे में जब ये कंबाइन करते हैं तो वो सब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, और उन्हें ही कहते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यानी एटम्स जब भी हम आपस में ऐड होंगे, जब भी रिएक्शन करेंगे तो वो कुछ रूल्स को गवर्न करेंगे, और उन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसका पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी हमें कंजर्व करना है किसे, मास को। तो ये लॉ कहता है कि ना केमिकल रिएक्शन, या वेरी सिंपल अगर हम बात करें तो ये सिंपली कह देता है मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed। यानी मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो अगर ये रिएक्टेंट 1 है और ये दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना और ये दूसरा प्रोडक्ट बना, तो कहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जितना लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लॉस ऑफ मास को डिनाई करता है। ये कहता है कि मास हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। सेकंड लॉ पे जा रहा है। सेकंड लॉ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्चुअली अगर हम जब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड बनाने की, तो एक बात हमने यहाँ फिक्स की थी कि एटम्स combined in a fixed ratio and form compounds। और अगर वो फिक्स रेशो नहीं होता तो वो कंपाउंड वो बन जाता है मिक्सचर। मिक्सचर में कोई भी रेशो फिक्स नहीं होता, यानी आप शुगर और सैंड को किसी भी रेशो में मिला सकते हैं, 1:1, 2:2, 2:4, 1:1.5, कोई भी रेशो मिला सकते हैं, वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट किसी एक फिक्स्ड रेशो में मिलाएं तो वो क्या बनता है, कंपाउंड। तो यही यहाँ से डिफाइन होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स अ गिवन कंपाउंड। अगर हम गिवन कंपाउंड में H2O की बात कर लेते हैं तो H2 यानी इसका मास 2 और ऑक्सीजन का मास कितना, 16, और टोटल मास कितना था, 18। यानी इस 18 अगर हम मोलर मास बात कर रहे हैं वाटर के U की, तो इसमें फिक्स्ड है हाइड्रोजन कितना रहेगा 2 और ऑक्सीजन कितना रहेगा 16। तो यही वो कह रहा है डिफाइन करने के लिए अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। यानी यहाँ पर एलिमेंट कौन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और दोनों का जो प्रपोर्शन है वो कितना है, 2 या ग्राम या 16 ग्राम। तो अगर हम वाटर को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, चाहे आप लें टैप वाटर, चाहे आप ले रिवर वाटर, रेन वाटर, और चाहे आप खुद पानी को बना लें रिएक्शन करा के H2+O2, तो जब भी वाटर बनेगा तो वाटर ऑलवेज हैव अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट। तो यू कैन डिफाइन इट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। नेक्स्ट वन आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो इस बार हमें जो कंपाउंड्स लेने हैं वो एक ना लेके मल्टीपल कंपाउंड लेने हैं, लेकिन मल्टीपल कंपाउंड हमें बने हों सेम एलिमेंट्स से। तो थोड़ा सा वो टिपिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर टुडे। इसके क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर के सॉल्व करिए और डाउट्स पूछिए। थैंक यू।